Hello friends, today we are discuss about hydrocarbon. Hydrocarbons. First of all, we are discuss about hydrocarbon. What do you mean by hydrocarbon? Hydrocarbon means those compound which having carbon and hydrogen. It means hydrocarbon consists two elements. Number one, first is carbon and another is hydrogen. तो आप देख रहे हैं कि इसके नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स में हम इंक्लूड करें जैसे ऑयल्स, पेट्रोल्स, डीजल एंड सो ऑन। तो आप अगर डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। लिखिए, दोज कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन फिक्स रेशियो इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखिए आप लोग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से तो हाइड्रोकार्बन्स के मेन 4 टाइप्स हैं। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे कि 2 टाइप्स इसके मेन हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज आल्सो क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons consist alkane and cycloalkanes, and unsaturated hydrocarbon consists alkene and alkynes. And aromatic hydrocarbon consists aromatic compounds like arene or benzene. ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons means alkane. Saturated hydrocarbon and saturated hydrocarbon means alkane. It means इसमें saturation हो रहा है और saturation by the help of hydrogen. Saturation by the help of single bonds. Saturated hydrocarbons never have any pi bonds. It means pi bond is totally absent in the saturated hydrocarbon. So, one example, saturated hydrocarbons, alkane and cycloalkane. Yes, again one compound is alkane and cycloalkane. First of all, we are discuss about alkane. What do you mean by alkane? Okay, so number 1, first point is alkane. alkane के डेफिनेशन के मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल पे हम alkane के बारे में बात करते हैं तो alkane मीन्स डेफिनेशन समझ में आ रहा है। यस, alkane इज a saturated hydrocarbon. So those saturated hydrocarbon, अब डेफिनेशन नोट करिए आप लोग alkane का, those saturated hydrocarbon which having C single bond C, those saturated hydrocarbon which having C single bond C and C single bond H, C single bond C, C single bond H is called alkane. The common name of alkane, alkane is also called, yes, one name is paraffins. Alkane
is also called paraffins. Why it is called paraffins? Because alkane is less reactive. Because alkane is less reactive. So it is called paraffins. So remember it. One, alkane. Alkane is a saturated hydrocarbon, and alkane commonly known as the paraffins. Paraffins means less reactive compounds. Understand? और सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहें, दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन C बॉन्ड H is called saturated hydrocarbon. और this type of saturated hydrocarbon is called alkane. एल्केन के बारे में हम बात कर रहे थे और हम देख रहे थे कि एल्केन का एक अलग फॉर्मूला है पूरा. एल्केन का केमिकल फॉर्मूला मैं डालिए आप लोग. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज N इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 and so on. And this main chemical formula is CnH2n plus 2. Main chemical formula of alkane is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. It means दो कंडीशन नेसेसरी है. नंबर 1 C सिंगल बॉन्ड C and number 2 C single bond H. C single bond C and C single bond H. CnH2n plus 2 chemical formula of alkene. Okay, where n equals to number of carbons. Okay, where n equals to number of carbons also consists 1 0 1 2 and so on, जैसा मैंने यहां मेंशन किया. देख रहे हैं आप लोग. इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स फर्स्ट अल्केन इज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम सिंगल कार्बन बिकॉज सिंगल कार्बन कंसिस्ट C सिंगल बॉन्ड H. सो फर्स्ट अल्केन इज स्टार्टेड फ्रॉम N इक्वल्स टू 0. ओके, वेयर n इक्वल्स टू 1 2. यहां पे हम 0 से स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं. उसका एक खास रीजन है कि जब भी आप स्टार्टिंग 0 से करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 0 हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन्स आपका जो है वो वहां से कम हो जाएगा. दिस नॉट हाइड्रोकार्बन्स. दिस n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and n equals to 1 2 3 4 5 6. First of all, we are discuss about the number of carbons. If number of carbon is 1, first carbon है, then chemical formula is CnH2n plus 2. इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे. ठीक है, और यहां पे आपने रखा n इक्वल्स टू 1 इस फॉर्मूले में. केमिकल फॉर्मूले में अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन्स पहला कार्बन रखा है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा. देखिए यहां पे C1H2 into 1 2 plus 2. It means CH4, first alkane, CH4. And the IUPAC suffix, it is also called primary suffix. IUPAC primary suffix is ANE. And word root means number of carbons, single carbon, one carbon. The word root is meth, METH, meth. And IUPAC primary suffix is ANE. So first hydrocarbons, first saturated hydrocarbons, first alkane is called methane. First alkane is called methane. Yes, methane is also called commonly known as Mars gas.
मीथेन इज कॉमनली नोन एज मास गैस। कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला एक और क्या हो जाएगा आपके पास सामने यहाँ पे, मास गैस। रिमेंबर इट। नेक्स्ट, इफ यूज n इक्वल्स टू 2, ओके। नेक्स्ट, सेकंड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्केन के लिए नंबर n इक्वल्स टू 2, ओके। n इक्वल्स टू 2, देन योर केमिकल फॉर्मूला इज C। यहां पे हम नंबर रख रहे हैं n की जगह पे 2 नंबर्स, तो C2, ओके, प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, then your new formula is C2H6। word root, number of carbon 2, eth, then carbon carbon single bond, that is called ethane। eth, C2H6 eth, then ethane। यहां पे इस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा पूरा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा आप देखते हैं कि ये नंबर्स आपके चेंज होते जाएंगे। ध्यान से देखिए आप लोग इसमें कि कुछ सबसे हमारा मेन टारगेट क्या है। हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में हमने पहला पढ़ा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम बात कर रहे हैं एल्केन और साइक्लोएल्केन की। अभी मैं आपको एल्केन के बारे में बता रहा हूं। एल्केन मींस, व्हाट डू यू मीन बाय एल्केन? एल्केन की डेफिनेशन, दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, that is called alkane। alkane commonly is also known as paraffins। Greek word है paraffins। paraffin means less reactive elements और less reactive compound, जो कम reactive होता है, कम reaction करता है, okay। then chemical formula of alkane, एग्जाम में कई बार पूछा गया है chemical formula। chemical formula of alkane is CnH2n plus 2, where n equals to नंबर ऑफ कार्बन, शुरुआत होगी आपकी 1 से 1 2 3 4 5। अगर आपने n बाय 0 रखा है तो कार्बन यहां से डिसॉल्व हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू जो है आपकी हट जाएगी। सिंपल एक वर्ड बच जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग, हाँ ये जरूर है कि आप स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एल्केन में ही 1 से होगा। अभी आप आगे और बढ़ेंगे तो 1 भी हट जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। क्या इतना क्लियर है आप लोगों के पास? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H इज कंपल्सरी। इस फॉर्मूले में हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे। सपोज n इक्वल्स टू 1, सो योर केमिकल फॉर्मूला इज फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट एल्केन इज कॉल्ड मीथेन CH4, मीथेन मास गैस। इफ n इक्वल्स टू 2, number of carbons n equals to 2, then your second chemical formula of alkane is C2H6, that is called, word root is eth and single bond, so it is called ethane। This is your complete your first part of hydrocarbons or alkane। नोट कर लीजिए पूरा। ठीक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन के बारे में हम जब बात करते हैं तो एल्केन में अलग अलग डिविजन्स थे। जैसे आपने देखा सबसे पहले एल्केन की डेफिनेशन, दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैविंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्केन। एल्केन के बारे में मैंने आपको बताया, अभी कई और कंपाउंड्स आपके पास थे। अब अगर मान लो हमने, जैसे सबसे पहले वर्ड रूट आप सब बच्चों को याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्टकट तरीके से वर्ड रूट के बारे में बताता हूं।
सपोज नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है, C1, then it is called meth. C2, then it is called eth. C3, then it is called prop. C4, then it is called but. C5, then it is called pent. C6, then it is called hex. C7, then it is called hept. C8, that is called oct. C9, that is called non, and C10, that is called dic. ओके, सभी बच्चों को वर्ड रूट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स आपको याद रहे, नंबर ऑफ कार्बन्स, देन इफ number of carbons is 1, then it's called meth. If number of carbons is 2, then it's called eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dic. ओके, मैं एल्केन को कंटिन्यू कर रहा हूं। इफ n इक्वल्स टू 1 है, देन केमिकल फॉर्मूला C1 H2n plus 1 CH4. If n equals to 2, C2 H6. If n equals to 3, C3 H8. मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हो उसे जस्ट डबल करके हाइड्रोजन प्लस 2 करना है आपको। ये डायरेक्ट ट्रिक है आपके लिए, है ना। ये नंबर ऑफ कार्बन सपोज 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। n equals to 4, C4 H10. n equals to 5, C5 H12, and n equals to 6, C6 H14. So first meth, number 1 meth, C single bond C, कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है, so it is called methane. C2H6, that is called ethane. C3H8, 3 carbons, prop, and C4H10 called butane. C5H12 is called pentane. नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कितने कार्बन है आपके साथ, कितने कार्बन का अरेंजमेंट है, कैसे आप उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, बॉन्डिंग के डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन 6, दिस कॉल्ड हेक्सेन। हेक्सेन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट वर्ड रूट। सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन्स, केमिकल फॉर्मूला, देन IUPAC नेम, ओके। देन we are discuss about isomerisms in alkane. आइसोमेरिज्म एल्केन के पहले थोड़ा सा आप लोगों को मैं IUPAC के कुछ और सेक्शन बता देता हूं एल्केन में, जिनमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल तो पे फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 5, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो। दिस कॉमन नेम का अरेंजमेंट होता है नॉर्मल, आइसो एंड नियो। कई बार आप देखते हैं कई सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो कई जगह पे आपको कॉमन नेम में लिखा रहता है आइसो, कई जगह पे लिखा रहता है नियो, यानी कि अलग अलग जगह पे ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। तो व्हाट डू मीन बाय आइसो, व्हाट डू मीन बाय नियो, आइसो कब लगाएंगे, नियो कब यूज करेंगे आप लोग, तो उसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बीच में अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन का कंटिन्यूएशन पार्ट है, 5 कार्बन का चेन है, और आप देख रहे हैं कि कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है कार्बन चेन, कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट है। देन इट इज कॉल्ड number of carbon 1 2 3 4 5 carbons, so it is called normal
pentane. So it is called normal pentane because all alkyl group is a straight chain. So it is called normal pentane. नॉर्मल वर्ड, यहाँ प्रीफिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, जहां फर्स्ट हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया है, नॉर्मल. इफ सेकेंड अल्काइल ग्रुप्स हैविंग if second number of carbons having one alkyl groups, second number of carbons having one alkyl group, that is called iso. Then we use prefix iso. Okay, if second number of carbons having one alkyl group, single alkyl group, then it is called iso, iso compounds. Number of carbons, total number of carbons again 5, so it is called isopentane. So it is called isopentane. One is normal pentane. All number of alkyl groups arranged in a single straight chain. This chain is not on any branch, single straight carbon chains, so it is called normal. Number of carbons 5, so normal pentane. If second number of carbons having single alkyl group, then we use prefix iso for common nomenclature. Then it is called isopentane. If second number of carbons having two alkyl groups, if second number of carbons having two alkyl groups, आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर के कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऊपर वाले में कितना अल्काइल ग्रुप था, ओनली सिंगल. इसमें सारे जो ग्रुप हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें इस कार्बन का जो चेन है वो स्ट्रेट है, ब्रांच बिल्कुल नहीं है, अनब्रांच है पूरा. ठीक है, तो वो नॉर्मल आइसो. इफ सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन्स हैविंग टू अल्काइल ग्रुप, देन वी यूज prefix neo. Okay, then we use prefix neo. The new formula is neopentane. Neopentane. First of all, normal pentane. Second is isopentane, and third is neopentane. Okay, normal, iso, and neo. If carbon is a straight chain, then we use prefix normal, and if second number of carbons having single alkyl groups, then we use prefix iso. If second number of carbons having two alkyl groups, then we use prefix neo, that is neopentane. Okay, different functional groups having different compounds. The IUPAC name is different. IUPAC name is totally different, but common name is similarly same, but prefix is different. First of all normal, second iso, third is neo. IUPAC name, फर्स्ट का IUPAC नेम यहां मेंशन कर रहा हूं मैं. सबसे पहले वाले का IUPAC नाम देखिए, नंबर ऑफ कार्बन्स, दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, number of carbons 5, all in form a straight chain, so it is called pentane. So it is called pentane. Second, numbering start from here, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. Total number of carbons is 4 in a straight chain. Second number of carbons having one alkyl group, so it is called 2-methyl. 2-methyl, number of carbons is 4, 2-methyl butane. 2-methyl butanes.
third neopentane is common name and IUPAC name is, look here, 1 2 3, second number of carbons having 2 alkyl groups, so it is called neo. Then IUPAC name is 2 2 2 2 dimethyl, 2 2 dimethyls, and word roots number of carbons 3, so prop, and all the carbons having single bond, so it is called propane. So all the three name is common name, normal pentane, isopentanes and neopentane, and all this compound name is IUPAC name. One is pentane, second is 2-methyl butane, third is 2,2-dimethyl and propane. Okay, those common name and IUPAC name of alkane. Not clear?